السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت، عبوری احکامات کا امکان۔ بورڈ میں غیر مسلمانوں کی شرکت، وقف بائی یوزر اور کلیکٹرز کو دیے جا رہے اختیارات پر عدالت کا اعتراض۔ بیرسٹر اویسی بھی کمرہ عدالت میں موجود۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی 16 تا 22 اپریل جاپان کے دورے پر روانہ۔ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون سے متعلق ہوگا تبادلہ خیال۔ راجیو یووا وکاسم اسکیم ایک گیم چینجر ہے، ریاستی بینکرز تعاون کریں۔ مستحق افراد کو 3 تا 15 دن تک تربیت دی جائے گی۔ بینکرز اجلاس سے بھٹے وکرمارکا کا خطاب۔ اور آم توڑنے کے دوران ایک شخص ہلاک، گڈے ملکاپور میں افسوسناک واقعہ۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وقف قانون 2025 کے خلاف سپریم کورٹ میں آج درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ سماعت کے پہلے دن عدالت نے وقف بائی یوزر یعنی عرصے دراز سے استعمال میں آ رہی اوقافی جائیدادیں، وقف بورڈ میں غیر مسلمانوں کی شراکت اور کلیکٹر کو اس قانون کے ذریعے دیے جا رہے اختیارات پر کافی اعتراضات کیے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشوناتھن پر مشتمل بینچ نے سماعت کے پہلے ہی دن اس قانون کی مختلف قابل اعتراض شقوں کو روک دینے کے بارے میں
इम्कानी उबूरी अहकामात देने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि ये उबूरी अहकामात समाअत के दूसरे दिन यानी जुमेरात को मुमकिन हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल वफ़्क़ कानून को चैलेंज करने वाली 73 दरख्वास्तों की अदालत समाअत कर रही है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर ओवैसी भी अदालत में मौजूद थे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और दीगर पैरवी कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी के अलावा कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई व दीगर सियासी जमातों के अलावा दीगर मुस्लिम तंजीमों बशमूल जमीयतुल उलमा और दरख्वास्त गुजार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जियों पर यह समाअत हो रही है। कपिल सिब्बल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह कानून दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अंग्रेज़ों से पहले मुल्क में रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं था। कई मसाजिद 13वीं और 14वीं सदी में तामीर की गईं। अगर इनसे आज सेल डीड मांगी जाती है तो ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह वफ़्क़ कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट में इस पर तफसीली बहस की गई। इससे कबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई थी और कमेटी ने मुल्क भर में दौरा करते हुए नुमाइंदगियां वसूल की थीं। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि वक्फ सेक्युलर इदारा है, इसमें गैर मुस्लिम के साथ मुसलमानों के दीगर तबक़ात जैसे बोहिरा, आगा खानी को भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुस्लिम फ़रीक़ैन के वकला ने इस कानून की कई दफ़ात को दस्तूर के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस आर्टिकल की रूह से मजहबी मामलात को चलाने की आज़ादी दी गई थी। कलेक्टर को दिए जा रहे इख्तियारात पर यह कहा गया कि कलेक्टर हुकूमत का हिस्सा होता है। अगर यही जज का किरदार अदा करे तो यह गैर दस्तूरी होगा। कपिल सिब्बल ने एक नुक्ता पेश करते हुए कहा कि इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र एक अटूट हिस्सा है। मजहबी और खैराती मकसद के लिए एक तवील अरसे तक इस्तेमाल की जा रही जायदादों को किसी दस्तावेजात के बगैर भी वक्फ समझा जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि मुल्क में 8 लाख वक्फ जायदादों में 4 लाख जायदादें वक्फ बाय यूज़र हैं। एक मरहले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की ज़मीन पर तामीर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि तमाम वक्फ बाय यूज़र गलत है। सिंघवी ने कहा कि हम पूरे कानून की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, चंद दफ़ात जो मंशाए वक्फ के खिलाफ हैं इस पर रोक लगाना चाहिए। बहस के दौरान चीफ जस्टिस ने वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद पर तशवीश का इज़हार किया। उनके इस रिमार्क पर सरकारी वकील ने कहा कि इसके ज़रिए सिस्टम पर दबाव डालना चाहते हैं। सरकारी वकील के रिमार्क पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नहीं मालूम कि कौन दबाव डाल रहा है। वक्फ कानून पर अदालत में जुमेरात को भी समाअत जारी रहेगी और अदालत की जानिब से उबूरी अहकामात की तवक्का की जा रही है, जिसमें इस कानून की कई दफ़ात पर रोक लगाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने सवाल किया कि क्या हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में मुस्लिम अरकान शामिल होते हैं। आला अदालत का कहना था कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल किया जाता है तो क्या हिंदू मजहबी बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। अदालत ने समाअत के आखिर में ये इशारा दिया कि वो इस मुकदमे में 2 उबूरी अहकाम जारी करने पर गौर कर रही है। एक, वक्फ बोर्ड में तमाम अरकान मुसलमान होंगे और दूसरा ये कि हुकूमत ऐसी कोई कार्रवाई न करे जब तक ये समाअत जारी है, किसी भी वक्फ जायदाद को मनसूख न किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मंगल की रात जापान के दौरे के लिए रवाना हो गए। रियासत के ओहदेदारों का वफ्द भी वज़ीर आला के हमराह रवाना हुआ। 16 अप्रैल ta 22 अप्रैल तक तेलंगाना के नुमाइंदों का वफ्द का जापान का दौरा जारी रहेगा। टोक्यो, माउंट फ्यूजी, ओसाका, हिरोशिमा में वज़ीर आला का वफ्द दौरा करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों, सनतकारों और नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला का वफ्द मुलाकात करेगा। रियासत में सरमायाकारी, सनतों में टेक्नोलॉजी ताउन के मामले में अहम तबादले ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव युवा विकासम एक गेम चेंजर है। प्रजा भवन में बैंकर्स के इजलास से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नौजवानों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी।
इससे बैंकर का नाम होगा। उन्होंने कहा कि ये स्कीम रियासत में एक गेम चेंजर साबित होगी। बैंकर्स के साथ हुए खुसूसी इजलास में उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकासम स्कीम को एक मामूली स्कीम के तौर पर न देखें। इंसानी नुक्ते नज़र से रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदार इसका तफसीली जायजा लेने के बाद इस स्कीम को तैयार किया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी इतनी बड़ी रोजगार स्कीम के फंड्स मख्तस किए नहीं गए। पिछली हुकूमत ने 10 साल में बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात नहीं किए गए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव युवा विकासम से माशी और समाजी तरक्की होगी। नौजवानों की मदद के लिए बैंकर्स ताउन करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बैंकर्स 16,000 करोड़ रुपए मरबूत करने के लिए आगे आएं। इस स्कीम में बैंकर्स हिस्सा लेंगे तो अच्छा नाम होगा। इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को ओहदेदार 3 ta 15 दिन तक तरबियत देंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जिली सतह पर कलेक्टर्स बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद करें। उन्होंने कहा कि फिर एक बार SLBC इजलास मुनक्किद किया जाएगा। राजीव युवा विकासम के मुस्तहक अफराद को हुकूमत का हिस्सा जारी करके ही बैंकर्स इससे मरबूत रकम को जारी करें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की कार्रवाई के खिलाफ ED चार्जशीट में नाम इंदराज के खिलाफ एहतजाज करते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने रुकने पार्लियामेंट अनिल यादव और दीगर के साथ MLA क्वार्टर से BSNC भवन तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में काले झंडों के साथ मुजाहरा किया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गांधी खानदान पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा बदले की कार्रवाई है। राहुल गांधी के तबकाती सर्वे से मोदी खौफजदा हो चुके हैं। गैर कानूनी मुकदमात से अवाम का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने ED दफ्तर के पास धरना दिया। शालीबंडा में कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मरकज की BJP हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर किया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चिश्ती फाउंडेशन के इजलास में वक्फ कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया है। फाउंडेशन की जानिब से मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना अहसन अल हमूमी, मौलाना वहीदुद्दीन, मौलाना सैयद बंदगी पाशा कादरी, डॉक्टर अब्दुल हमीद शर्फी, मौलाना मोइजुद्दीन शर्फी, हबीब एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद अली कादरी ममशाद पाशा, इंचार्ज मजलिस चारमीनार मोहसिन बलाला, साबिक रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने मरकजी हुकूमत की नीयत और अज़ाइम को बेनकाब किया। मोदी हुकूमत से फौरी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी ने जलसे की कार्रवाई चलाई। तेलंगाना BJP के नायब सदर मनोहर रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी की जिम्मेदार कांग्रेस वक्फ कानून की मुखालिफत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1995 वक्फ कानून में तरमीम की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तीसरी बड़ी मिल्कियत वक्फ की है। रेलवे दिफा की जायदादें अवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन वक्फ की जायदाद से चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कानून में तरमीम पर बाज़ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 80% वक्फ जायदाद पर कब्जे होते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता वक्फ कानून तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नए कानून से कोई नुकसान नहीं है, इस पर गौर करें। BRS पार्टी के नौमंतखबा MLC D श्रवण ने चारशंबे को हलफ ले लिया। कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, BRS के कारगुजार सदर KTR के अलावा पार्टी के दीगर अरकान असम्बली सेक्रेटरी नरसिम रुचाली इस वक्त मौजूद थे। हलफबरदारी के बाद रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में D श्रवण ने कहा कि उनको दोबारा सियासी जिंदगी देने वाले KCR हैं। उन्होंने KCR के अलावा दीगर कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने बोर्ड के अरकान के साथ हज कैंप 2025 के इंतजामात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हज कैंप के इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ तालमेल पर भी तबादले ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि 2024 में जो मुश्किलात पेश आई थीं, इसका इयादा न हो, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया। आज़मीन की खिदमत के लिए ज़ैली कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। उन्होंने आज़मीन को वक्त पर टीके लेने का मशवरा दिया है। इजलास में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, सदर नशीन वक्फ बोर्ड के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने वक्फ कानून 2025 के खिलाफ हफ्ता 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जलसे-ए-आम में शिरकत की अवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए हुकूमत मुसलमानों के औकाफी जायदादों को छीनना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बाद नमाज मगरिब जलसे का आगाज होगा। 19 तारीख को हफ्ते के दिन बाद मगरिब से 10 बजे शब तक ये जलसा जारी रहेगा, जिसकी निगरानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में इंतजामात और तशहीरी इंतजामात तेजी से जारी है। 19 तारीख का एक फकीदुल मिसाल जलसा साबित होगा। शहर के तमाम रास्ते दारुस्सलाम पे ख़त्म होंगे। मैं अपील करता हूँ तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से बिला लिहाज मजहब फ़िरका वो इस जलसे में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दे और वो हालात पैदा करे जिसके तहत हमारे नुकसान रसां जो बिल आया है उसको हुकूमत वापस लेने पे मजबूर हो जाए। शुक्रिया। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक एहतजाजी जलसे आम हफ्ता 19 अप्रैल को शाम 6 बजे दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक्किद होगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मौलाना सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने अवाम से अपील की है कि वो इस जलसे में भारी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने मुसलमानों से उनके औकाफी असासों को छीन लेने, दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए इस कानून को बनाया है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन और मुल्क के दस्तूर पर ईखान रखने वाले तमाम अब्नाए वतन से कहा कि वह इस जलसे में शरीक होकर इस कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो इजलास दारुस्सलाम में 19 अप्रैल को 6 बजे तक 10 बजे मुनक़िद होने जा रहा है, आप हज़रात उसमें ज़रूर शिरकत करें। दोस्त अहबाब के साथ शिरकत करें, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शिरकत करें। विकाराबाद जिले के मनोर सोमारम प्राइमरी स्कूल के छत से सीमेंट के गिरने से 6 साला तालिबा जख्मी हो गई। बताया जाता है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, क्लास जारी थी। पहली जमात की सुरेशा इस वाक़े में जख्मी हुई है। वाक़े की तला मिलते ही सरपरस्त स्कूल पहुंच गए। सुरेशा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर पर धावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईडी की 10 टीमों ने सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में एक साथ धावे किए। बताया जाता है कि साई सूर्या डेवलपर्स के दफातर पर भी धावे किए गए हैं। माली मामलतों और बेकायदियों के सिलसिले में इन धावों की इत्तला मिली है। राजेंद्र नगर ORR के पास सरकारी महकमे से वाबस्ता मुलाजिम की तरफ से टोल स्टाफ पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में जूनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले शख्स ने टोल के मुलाजिम पर हमला किया। इस वाक़े की CCTV भी सामने आई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में आम तोड़ने के दौरान एक शख्स पानी की टांकी की सीढ़ियों से गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक नविदिया कॉलोनी में वाक़े वाटर वर्क्स के दफ्तर में आम का दरख्त है। किशोर नामी शख्स पानी की टांकी की सीढ़ियों पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सीढ़ियों की रेलिंग मुनहदिम हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकामे वाक़या पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के सिटी कॉलेज के करीब रात पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में 32 साला नौजवान इम्तियाज़ हुसैन हाशमी वल्द बशारत हुसैन हाशमी जान बहक हो गए, जबकि उनके वालिदैन जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पंचमोहल्ला के रिहायशी इम्तियाज़ हुसैन हाशमी रात अपने वालिदैन के हमराह कार में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सिटी कॉलेज के करीब वाक़े रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वो और उनके वालिदैन ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां नौजवान ज़ख्मों से जांबर न हो सका।
मीरपेट पुलिस स्टेशन के अमले के खिलाफ एडवोकेट ने मुबैना नाशाइस्ता सलूक की शिकायत की है। एडवोकेट नरेशन ने बताया कि उनकी बहन और बहनवई खानदानी तनाज़े को लेकर पुलिस स्टेशन से रुजू हुए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में उनकी बहन और बहनवई के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस के आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 14 अप्रैल को ऑटो ड्राइवर से रकम और मोबाइल फ़ोन छीनने वाले 2 रहज़नों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 14 अप्रैल को ऑटो ड्राइवर अमजद अपने भाई के साथ लाड बाजार से सवारी बिठाकर जियागुड़ा पहुंचा था। सवारी छोड़ने के बाद जब वो वापस हो रहा था, 3 अफराद ने उन्हें रोक लिया। अमजद को धमकाकर 5000 रुपए की रकम और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। शिकायत मिलने पर कुलसुमपुरा पुलिस ने तहकीकात करते हुए राजेंद्र नगर के मुश्तबा रौडी शीटर मुबीन और मंजूर अली खान को गिरफ्तार कर लिया। उनका एक साथी पाशा टेलर मफरूर बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, अबूरी अहकामात का इम्कान। बोर्ड में गैर मुसलमानों की शिरकत, वक्फ बाय यूजर और कलेक्टर्स को दिए जा रहे इख्तियारात पर अदालत का एतराज। बैरिस्टर ओवैसी भी कमरे अदालत में मौजूद। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 16 ta 22 अप्रैल जापान के दौरे पर रवाना। सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन से मुताल्लिक होगा तबादले ख्याल। राजीव युवा विकासम स्कीम एक गेम चेंजर है, रियासती बैंकर्स ताउन करें। मुस्तहिक अफराद को 3 ta 15 दिन तक तरबियत दी जाएगी। बैंकर्स इजलास से भट्टे विक्रमार्का का खिताब।
اور آم توڑنے کے دوران ایک شخص ہلاک، گڈے ملکاپور میں افسوسناک واقعہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی۔ خدا حافظ۔